Corporate America changed forever. Enron filed for bankruptcy December 2nd, 2001. The collapse of the deal between Enron and Dynegy has left Enron employees stunned, many of them wondering if they'll be getting their next paycheck. Everybody's concerned about their job. As it is right now, I think everybody's a little in shock. People don't know if they get their paychecks on Friday. It had taken Enron 16 years to go from about 10 billion of assets to 65 billion of assets. It took them 24 days to go bankrupt. If there was one, you say it was pride. But then it was arrogance, intolerance, greed. It just immediately had all the makings of a gigantic scandal. Shep, December 2nd, 2001, the day of the bankruptcy was a Sunday. The very next day, Monday, 4,000 Enron employees were thrown out of work, many of them onto the street behind them. Ultimately, more than 20,000 had their careers uprooted. In reality, Enron was a house of cards. What we didn't know is that the house of cards had been built over a pool of gasoline. It all sort of became smoke and mirrors. The Enron story is so fascinating because people perceive it as a story that's about numbers, that it's somehow about all these complicated transactions. But in reality, it's a story about people, and it's really a human tragedy. Before he died, did you have many conversations with him? We just came out of Enron. No, Enron had made contributions to a lot of people around Washington, D.C. According to published reports, your husband earned about $300 million in compensation and stocks from Enron over the last 4 years. What happened to all that money? Guilty verdicts in the biggest case of corporate fraud in history. Enron Corp filed for what at the time was the largest ever corporate bankruptcy. Epic collapse and corporate malfeasance and negligence and criminality. This is a case of America's largest corporate bankruptcy. The question here is what happened, who was responsible for it happening, and what can we do to prevent this sort of thing from happening again? आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनने वाले हैं जो सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। एक कंपनी थी अमेरिका की टॉप कंपनीज में से एक, जिसका नाम था एनरॉन। कभी सोचा एक ऐसी कंपनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर की थी एक दिन में कैसे धूल मिल जाएगी? ये है एनरॉन स्कैंडल। एक ऐसा फ्रॉड था जिसने न सिर्फ पैसा बर्बाद किया बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी उजाड़ दी, बिलियंस ऑफ डॉलर जला दिए, जॉब्स चली गई और कॉर्पोरेट दुनिया को एक बड़ा झटका लगा। तो आज हम इस स्कैम के पीछे की असलियत समझेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और ये सब कब तक छुपा रहा। चलो शुरू करते हैं एनरॉन की स्टोरी, एक स्कैम जो इतिहास की किताबों में लिखा गया। एनरॉन की शुरुआत हुई थी 1985 में जब दो छोटी कंपनीज इंटर्न नॉर्थ और ह्यूस्टन नेचुरल गैस एक साथ मिली। इंटर्न नॉर्थ एक पुरानी कंपनी थी, 1930 से नेचुरल गैस का बिजनेस कर रही थी। उस टाइम पे गैस एक बड़ा एडवांस धंधा था, जैसे हमारे यहाँ 90s में केबल टीवी या मोबाइल फोन्स आए थे वैसे ही। दूसरी तरफ ह्यूस्टन नेचुरल गैस की एक लोकल पाइपलाइन कंपनी थी। इन दोनों के मर्जर से बना एनरॉन और सीईओ बना केनेथ ले। अब ये कंपनी पहले सिर्फ गैस सप्लाई करती थी, मतलब पाइपलाइन से गैस भेजना, पावर प्लांट तक पहुंचाना, बेसिक बिजनेस। लेकिन 90s में जब अमेरिका में एनर्जी मार्केट डीरेगुलेट हुआ, मतलब सरकार का कंट्रोल कम कर दिया, तब एनरॉन ने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। गैस सप्लाई छोड़ के उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉडबैंड और यहाँ तक कि वेदर पे भी धंधा शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट इसको सो कॉल्ड डार्लिंग बुलाने लगा। स्टॉक प्राइस बढ़ता गया और 2000 तक एनरॉन की वैल्यू 60 to 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। जैसे रिलायंस या टाटा का क्रेज था वैसे ही एनरॉन का अमेरिका में था। एनरॉन सिर्फ कंपनी नहीं थी, ये एक ब्रांड बन गया था। फॉर्च्यून मैगजीन ने इसको 6 साल तक मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का अवार्ड दिया। स्टॉक प्राइस $90 पर शेयर तक पहुंच गई और एम्प्लॉय के लिए ये कंपनी बेस्ट प्लेस टू वर्क थी। हर कोई सोचता था कि एनरॉन कभी फेल नहीं हो सकता, मतलब एक स्टार्टअप बूम जैसा था। जब पेटीएम, फ्लिपकार्ट जैसे नाम बड़े बनने लगे तो लोग उनमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने लगे। वैसे ही एनरॉन ने अपने आप को ऐसा दिखा रहा था जैसे वो फ्यूचर की कंपनी है, एनर्जी ट्रेडिंग, इंटरनेट, बैंडविड्थ, सब कुछ। लेकिन ये सब एक चमकता हुआ झूठ था जो अंदर से खोखला था। इसके पीछे का असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन सबसे पहले हम प्लेयर्स को समझ लेते हैं। अब यहाँ स्टोरी के फर्स्ट हीरो की एंट्री होती है, केनेथ ले। ये बंदा एनरॉन का फाउंडर और सीईओ था। ले का बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो एक गरीब फैमिली से आता था। उसका बाप बैप्टिस्ट प्रीस्ट था। My father was a Baptist minister and he was ordained a Baptist minister while I was very young. Probably 2-3 years old.
बचपन में वो सोचता था कि कैसे अपनी लाइफ बदले। उसने पीएचडी की, पेंटागन में फाइनेंशियल एनालिस्ट बना और धीरे धीरे एनर्जी सेक्टर में बड़ा नाम बन गया। लेकिन असली खेल था उसका पॉलिटिकल कनेक्शन। जॉर्ज बुश सीनियर के साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि ले ने अपना कॉर्पोरेट जेट भेजा बुश को उसके बेटे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। जॉर्ज बुश जो बाद में प्रेसिडेंट बना, उसको ले केनी बॉय कहता था। fact that George W. Bush calls Ken Lay Kenny Boy. That's my nickname for my husband, which he overheard. ये एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के बीच की रिश्तेदारी थी। जैसे एक बंदा इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार के साथ मिलके अपना धंधा बनाता है, ले एक माइल्ड मैनर्ड बंदा था, लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े थे। अब दूसरा हीरो है जेफरी स्किलिंग। ये एनरॉन का असली मास्टरमाइंड था। स्किलिंग 1989 में एनरॉन में आया जब वो मैकेंसी कंपनी में कंसल्टेंट था। उसने ले को एक आइडिया दिया कि गैस सप्लाई छोड़ के हमें ट्रेडिंग पे ध्यान देना चाहिए। ले को ये आइडिया ब्रिलियंट लगा और स्किलिंग को एनरॉन का हेड बना दिया। बाद में वो सीईओ भी बना। So that was the one good idea. In 1992, using that good idea, we became the largest buyer and seller of natural gas in North America. स्किलिंग एक एग्रेसिव रिस्क टेकर बंदा था। Every year, every day, every week, you have to come up with new ideas. की फेवरेट बुक थी द सेल्फिश जेन, जहाँ ग्रीड और कंपटीशन को जिंदगी का असली मोटिवेटर बोला गया था। वो चाहता था कि एनरॉन एक फाइनेंशियल पावर हाउस बने और उसने ये सपना सच कर दिखाया। और कहाँ पे? पेपर पे। लेकिन जब ये दोनों ले और स्किलिंग एक साथ आए तो एनरॉन एक टाइम बॉम्ब बन गया। एनरॉन का असली गेम चेंजर आया जब स्किलिंग ने गैस बैंक का आइडिया दिया। और ये क्या था? सिंपल है, यूटिलिटी कंपनीज को फिक्स्ड प्राइस पे गैस गारंटी करना और डिलीवरी का काम किसी और कंपनी से करवाना। मतलब रिस्क भी हम लेंगे और प्रॉफिट भी हम कमाएंगे। ये आइडिया इतना हिट हुआ कि एनरॉन ने अपने पुराने पाइपलाइंस बेच दिए और फुल ऑन ट्रेडिंग कंपनी बन गई। 90s में .com बबल के टाइम पे उन्होंने ब्रॉडबैंड और इंटरनेट का धंधा भी शुरू किया। हर तरफ एनरॉन का नाम था। लोग कहते थे ये कंपनी दुनिया बदल देगी। There's a whole new world out there. Forget about this pipeline stuff, you know, the state pipeline in the ground and gas in and gas out. We can recreate this entire industry. लेकिन ये सब एक बड़ा झूठ था और इस झूठ के पीछे का पर्दा अभी खुलना बाकी था। यहाँ से असली खेल शुरू होता है। जेफरी स्किलिंग ने एक नई अकाउंटिंग ट्रिक इंट्रोड्यूस की, मार्क टू मार्केट। और ये क्या होता है? सिंपल बताओ तो अगर एनरॉन एक डील साइन करती थी जो 10 साल में $50 मिलियन देगी, तो वो उस प्रॉफिट को आज ही अपने बुक्स में लिख देंगे, चाहे एक पैसा भी उनको ना मिला हो। मतलब फ्यूचर का पैसा आज ही काउंट किया जाता था। डील फेल हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पेपर पे तो कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रही थी ना। We're going to move from mark to market accounting to something I call HFV, hypothetical future value accounting. Whoa! If we do that, we can add a gazillion dollars to the bottom line. Whoa, Jeff! All right, that sounds fantastic. Oh, Jeff, thank you. ऐसा था जैसे हमारे यहाँ एक बिल्डर फ्लैट बेचने से पहले सोल्ड आउट बोल देता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वही का वही रह जाता है। जब CEC अमेरिका का फाइनेंशियल रेगुलेटर ने इस ट्रिक को अप्रूव किया, एनरॉन के ऑफिस में पार्टी शुरू हो गई। Arthur Andersen signed off and the SEC approved it. Causey and everybody, I mean, everyone was so excited, and then came the champagne, and we'd got mark-to-market accounting treatment. उनको पता था कि ये एक गोल्डन टिकट है बिलियन ऑफ डॉलर छापने का, चाहे पैसा असली हो या नहीं। स्किलिंग का एक ही मंत्र था, ग्रेड इज गुड। उसने एनरॉन के एम्प्लॉयज को भी इस ग्रेड की आदत लगवाई। एक सिस्टम बनाया जहाँ हर साल स्टाफ को 1 से 5 स्टार तक ग्रेड मिलता था। 1 ग्रेड का मतलब बेस्ट, 5 ग्रेड का मतलब उस एम्प्लॉय को निकाल दो। और आगे का रूल तो देखो, 10% एम्प्लॉय को हर साल फायर करना कंपलसरी था। ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का गेम था। लोग 18 घंटे काम करते, बस कंपनी के लिए पैसा बनाते थे, चाहे जैसे भी हो। He instituted a system known as the PRC, or Performance Review Committee. It required that people be graded from a 1 to a 5, and roughly 10% of people had to be a 5, and those people were supposed to be fired. Hence, this came to be known as rank and yank. I personally am convinced that the PRC process is the most important process that we conduct as a company. I've never heard of a company yet that would be successful terminating 15% of their people every year just to satisfy the fact that the other employees had to vote on them. बंदा था लू पाई, जो एनरॉन का एक डिवीजन चला रहा था। ये बंदा इतना शातिर था कि $250 मिलियन लेके स्कैम से पहले ही निकल गया और कोलोराडो में सेकंड लार्जेस्ट लैंड डाउनर बन गया और एनरॉन को $1 बिलियन के लॉस में छोड़ दिया। जब भी कोई भागता है तो मुझे विजय माल्या की याद आ जाती है। छोड़ो, जाने दो। अब कहानी में विलन की एंट्री होती है, एंड्रयू फेस्टो, एनरॉन का CFO।
इसको बोलते हैं फ्रॉड का असली मास्टरमाइंड। फेस्टो ने एक फेक कंपनी बनाई, उनको एसपीवीज या स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं, और ये क्या था, एनरॉन के लॉसेस को छुपाने का जुगाड़। अगर कोई डील फेल हो जाती थी या डेट बढ़ जाता था तो वो लॉसेस फेक कंपनीज में ट्रांसफर कर देते थे ताकि एनरॉन के बुक साफ और सुंदर दिखे। ये सीन थोड़ा बहुत शेल कंपनी जैसा था जो टैक्स चोरी या ब्लैक मनी छुपाने के लिए बनाई जाती थी। फेस्टो ने एक फेक फर्म बनाई LGM और इससे खुद $45 मिलियन कमाए। बैंक्स भी इसमें शामिल थे। मेरल लिंच जैसे बड़े नाम्स ने एनरॉन के साथ मिलकर ये खेल खेला, लेकिन ये सब हमेशा छुपने वाला नहीं था। एनरॉन का सबसे गंदा खेल दिखा कैलिफोर्निया में 2000 to 2001 में, जब वहाँ एनर्जी मार्केट डीरेगुलेट हुआ। एनरॉन ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे कब्जा कर लिया। ट्रेडर्स ने पावर प्लांट को बोल दिया थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो ताकि सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ जाए। इससे प्राइस स्काई रॉकेट हो गई और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वापस बेचते थे बड़े दाम पे। रोलिंग ब्लैकआउट शुरू हुए, घर में लाइट्स ऑफ, हॉस्पिटल में परेशानी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लेकिन एनरॉन के ट्रेडर्स हाई-फाई मार रहे थे, बोनसेस ले रहे थे। कैलिफोर्निया को $30 बिलियन का नुकसान हुआ। और Enron's making money despite California, not because of California. California are the most regulated markets in North America today, and that's what's causing the problem. California is never deregulated. Enron buys stock today. Oh, I can't help myself. You know what the difference is between the state of California and the Titanic? And this is being webcast. I know I'm going to regret this. At least when the Titanic went down, the lights were on. ये सब रुकता भी क्यों? क्योंकि ले का दोस्त जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट था और उसने कुछ नहीं किया। फ्रॉड का पहला हिंट एक्चुअली 1987 में ही आ गया था, वैलहल्ला स्कैंडल। एनरॉन के 2 ऑयल ट्रेडर्स ने कंपनी के पैसों से बड़ी गैम्बलिंग की। 1987 involved the misappropriation of monies by 2 traders. एक अकाउंट्स बनाए, एक का नाम था माय एस, और कंपनी का पैसा अपने अकाउंट्स में डाल दिया। और My ass, you know. And M Smart, I said that's Maxwell Smart. I mean, these guys are playing games. ऑडिटर ने ले को बोला भी था ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन ले ने किया क्या, उनको फायर करने के बजाय बोला कीप मेकिंग अस मिलियन। और फिर क्या, बाद में दोनों जेल गए। लेकिन ले ने एक्टिंग की कि उसको कुछ भी नहीं पता था। ये दिखाता है कि शुरुआत से ही एनरॉन में ग्रिड का कल्चर था, लेकिन अब ये छोटा स्कैम नहीं था, अब तो पूरा एम्पायर झूठ पे खड़ा हो गया था। रोलिंग ब्लैकआउट्स के बाद क्रैक्स दिखने लगे। बेथनी मैकलिन जो कि जर्नलिस्ट थी वो सवाल उठाने लगी। 2001 तक एनरॉन का जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा। .com बबल क्रैश हुआ, ब्रॉडबैंड प्लान्स फेल हुए और लॉसेस छुपाना मुश्किल हो गया। बेथनी मैकलिन ने एक आर्टिकल लिखा, इज एनरॉन ओवरप्राइज्ड? उसने स्केलिंग से सिंपल सवाल पूछा, आप पैसा कैसे कमाते हो? स्केलिंग ने तो साफ बोल दिया कि उसको कुछ भी नहीं पता था, सब अकाउंटेंट से पूछ लो। In March 2001, Bethany McLean, a reporter with Fortune magazine, first raised questions about Enron's financial condition. She asked a simple question in the article that no one could seem to answer. How exactly does Enron make its money? She called up and started asking some very, very specific questions about accounting treatment on things. I am not an accountant. And I could not answer them. अगले दिन फेस्टो और टीम ने 3 घंटे तक उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन एंड में फेस्टो ने बोला कि उनको किसी चीज में बुरा मत दिखाओ। एनालिस्ट भी कंफ्यूज थे। स्टॉक प्राइस $90 से $40 गिर गए। एक एम्प्लॉय शेरन मॉकिस, उसने ले को लेटर लिखा, ये फ्रॉड है, कंपनी डूब जाएगी, लेकिन ले ने इग्नोर किया क्योंकि वो खुद इसमें डूबा हुआ था। अगस्त 2001 में स्किलिंग ने सडनली रिजाइन कर दिया। इसके पीछे उसने अपना पर्सनल रीजन बताया, लेकिन असल में वो भागने की कोशिश कर रहा था। It was Jeff Skilling announcing that he was stepping down as a CEO, and that took everyone by surprise. I left Enron on August 14, 2001 for personal reasons. उसने $60 मिलियन का स्टॉक बेच दिया, जबकि एम्प्लॉइज को बोल रहा था स्टॉक खरीदो, सब ठीक है। Mr. Skilling, your opening statement was extremely compassionate to the employees, and I want to show you a tape, and I believe we have it ready to go. Listen to this. Should we invest all of our 401k in Enron stock? Absolutely. Don't you guys agree? Why is it that you had begun unloading your stock pretty heavily before that date, and yet led the employees to think they should keep buying stock? ले फिर से CEO बना, लेकिन अब गेम खत्म होने के कगार पे था। फ्रॉड इतना बड़ा हो गया कि छुपाना इम्पॉसिबल था।
अक्टूबर 2001 में एनरॉन का सच सामने आने लगा। कंपनी ने $1 बिलियन का लॉस अनाउंस किया। यह पहली बार था कि जब उन्होंने 4 साल में क्वार्टरली लॉस दिखाया। इन्वेस्टर घबरा गए और स्टॉक प्राइस $80 से गिरते गिरते नवंबर तक 26 सेंट्स पे आ गए। एक दिन में शेयर का दाम इतना गिर गया कि लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचा। 2 दिसंबर 2001 को एनरॉन ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। ये अमेरिका का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बैंकरप्सी था उस टाइम पे। 20,000 लोगों की जॉब्स चली गई। एम्प्लॉइज को एवरेज $4,500 पैकेज दिए गए नौकरी छोड़ने के लिए, जबकि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने बैंकरप्सी के टाइम $55 मिलियन अपने लिए रखे और उसके 1 साल पहले $774 मिलियन निकाल लिए। ये चिट फंड स्कैम जैसा था जहां बड़े लोग पैसे लेके निकल जाते हैं और छोटे लोगों को रोने के लिए छोड़ दिया जाता। बैंकरप्सी के बाद पूरा केओस फेल हो गया। एनरॉन के अकाउंटेंट्स फर्म आर्थर एंडरसन ने 1 टन पेपर जला दिए ताकि प्रूफ ना बचे, लेकिन सीईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। This is the shredded evidence we got that came out of Enron. एक ट्रेडर क्लिफ बैक्स्टर जो स्कीलिंग के साथ एडवेंचर ट्रिप पे जाता था, उसने $30 मिलियन कैश लिया और जब कोर्ट में जाने का टाइम आया तो उसने अपनी कार में खुद ही सुसाइड कर लिया। शेरन वॉटकिंस जिसने ले को वॉर्न किया था, उसने कांग्रेस के सामने बयान दिया कि उसने ले को बोला था फ्रॉड हो रहा है, पर उसने सुनी नहीं। मीडिया ने स्टोरी को उठाया और लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। अब बारी है इन लोगों को सजा देने की। एंड्रयू फेस्टो जो कि फ्रॉड का मास्टरमाइंड था, उसने अपनी गलती मान ली और स्केलिंग और ले के खिलाफ गवाही देने का वादा किया। उसको 10 साल की सजा हुई, लेकिन उसने कॉर्पोरेट किया, इस वजह से वो 6 साल में ही छूट गया। उसने $23 मिलियन फाइन भी भरा। जेफरी स्केलिंग जो इस स्कैम का और एक मास्टरमाइंड था, उसको 19 अलग अलग जुर्म के लिए दोषी पाया गया, जैसे सिक्योरिटीज फ्रॉड और वायर फ्रॉड। उसको 24 साल जेल हुई और $180 मिलियन फाइन की सजा हुई, लेकिन 12 साल बाद 2019 में वो छूट गया। केनेथ ले को 10 जुर्म का दोषी पाया गया। उसको 45 साल जेल की सजा मिलने वाली थी, लेकिन सजा सुनने से पहले वो हार्ट अटैक से मर गया। एनरॉन के ऑडिटर आर्थर एंडरसन वो भी बच नहीं पाया। उस पे कानून की कार्रवाई रोकने का केस लगा। उसका लाइसेंस चला गया और जो पहले 5 बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स थी, अब 4 ही रह गई। 29,000 जॉब्स गए वहाँ की अकाउंटिंग फर्म में से। ये एक बड़ा रिमाइंडर है कि बड़े स्कैम्स में ऑडिटर भी हाथ मिलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ सत्यम स्कैम में प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स का हाथ भी था। एनरॉन के कोलैप्स ने अमेरिका को झंझोड़ दिया। इन्वेस्टर ने JP मॉर्गन चेस, सिटी ग्रुप जैसे बैंक्स पर केस किया और इससे उनको $7.2 बिलियन का क्लेम जो 1.5 मिलियन लोगों में बांट दिया गया। गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया, सार्बन-ऑक्सले एक्ट, जिसमें कंपनीज पे स्ट्रिक्ट रूल्स लगे। ऑडिटर को चेक करने के लिए बोर्ड बना और एग्जीक्यूटिव्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट पे साइन करना कंपलसरी किया गया। अब वो मुझे नहीं पता वाला नाटक नहीं कर पाएंगे। एनरॉन के बाद बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो हुए, जैसे 2018 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेफरी स्केलिंग जो 2019 में जेल से छूटा, अब एनर्जी सेक्टर में वापस आने की कोशिश कर रहा है। उसने एक नई कंपनी वर्ल्ड LLC शुरू की है, जो ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए डिजिटल मार्केट प्लेस बनाने पर काम कर रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक ये वेंचर एडवांस एनालिटिकल सॉफ्टवेयर का यूज करता है, जो इन्वेस्टर को उनके रिटर्न्स इवैल्यूएट करने में मदद करता है। SEC ने स्केलिंग को पब्लिक कंपनी का ऑफिसर बनने से बैन किया है, लेकिन प्राइवेट वेंचर में वो काम करने के लिए फ्री है। सोचने वाली बात है कि एक आदमी जिसने बिलियंस का फ्रॉड किया और हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, वो आज भी नए वेंचर्स में एक्टिव है। एनरॉन का मोटो था आस्क व्हाई। शायद हमें आज भी ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे लोग वापस कैसे आ सकते हैं। ये थी एनरॉन की कहानी, एक स्कैम जो एक एम्पायर को 1 महीने में धूल में मिला दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक बड़ी कंपनीज पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, चाहे वो कितनी भी इनोवेटिव क्यों ना दिखे। दूसरा, ग्रीड जब हद से गुजर जाती है तो बर्बादी पक्की है। इंडिया में देखो, नीरव मोदी, विजय माल्या या हर्षद मेहता, हर स्कैम के बाद सिस्टम बदलता है, लेकिन क्या पूरी तरह रुकता है? आपको क्या लगता है आजकल कौन सी कंपनी एनरॉन बन सकती है? इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर। दिस इज हिडन डेप्थ साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सोचते रहो, सच के साथ रहो और अपना ख्याल रखो।